Good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed the accounting treatment of goods and service tax. Under this chapter or under this topic, we discussed various kind of important provisions and important rules related to the goods and service tax. Such kinds of rules and information helps to record the transaction related to goods and service tax. You know very well, goods and service tax is an indirect tax which are included various kind of state and central indirect taxes. You know various types of goods and service tax are applicable in our country. They are at the central level. There are excise duty, service tax and central sales tax merged into GST, as well as at a state level, octroi entry tax, purchase tax, entertainment tax, value added tax, luxury tax, tax on lottery merge into a new and one nation one tax concept, that is goods and service tax. You know very well, any human being or any organization, either a GST received or paid. If any organization paid the GST, so it will be termed as input GST, and if it received any kind of GST, so it termed at output GST. And input GST is an assets and output GST is a liability for a firm. Input GST must be set off against output GST, but some of the important cases where GST paid cannot be set off against GST collected, like a restaurant bill, health insurance payments, membership fees, maintenance of building, purchase of vehicles, free gift to staff, and payment for goods and service for personal use. And the most important part is this: goods and service tax is levied on the supply of goods and services excluding alcohol and petroleum products. पेट्रोल और अल्कोहल प्रोडक्ट्स को छोड़ के भारत के सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, उसकी सप्लाई पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सम काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are also exempt from the levy of GST, like a payment of wages and salary, supply of services to government or embassies of other countries, electricity and water bills, educational services, health services, traveling expenses and interest. Today we will move to the next topic of this chapter. The topic is characteristics of goods and service tax. The first feature or characteristics of GST is it is a comprehensive indirect tax. GST is a comprehensive indirect tax which has replaced all indirect taxes levied by central and state government except custom duty, electricity and taxes on petroleum, taxes on alcohol drinks and taxes levied by local bodies. All indirect taxes had been merged in the single tax, that is GST. गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला दिया गया है, कुछ टैक्सेस छोड़ दिए गए हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हुआ,
पेट्रोलियम और अल्कोहल प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट अलग से चार्ज करती है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। एज वेल एज लोकल बॉडीज़ लाइक लोकल बॉडी मतलब म्यूनसिपालिटी, ग्राम पंचायत एंड कैंटोनमेंट पे जो टैक्सेस लगते हैं उनकी सर्विसेज पे वो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आते। द सेकेंड फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज़ यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। देयर आर यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। In the last video we discussed there are basically 5 rate of slab for collection of GST, that is 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, and such kind of rate will be applicable in all over India। अगर हम कोई भी इसेंशियल आइटम यूपी में परचेस करते हैं, यूपी में सेल करते हैं तो उस पर भी 0% जीएसटी पे करते हैं। एज़ वेल एज़ अगर एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो तो वहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रेट 0% ही होता है। वहीं लग्जरी आइटम या टोबैको की बात की जाए तो अगर वो प्रोडक्ट यूपी में सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है तो उस पर 28% का टैक्सेस लगता है, और अगर किसी अदर स्टेट में भी टैक्सेस चार्ज होते हैं अल्कोहल प्रोडक्ट्स टोबैको और लग्जरी आइटम्स पे तो उस पर भी 28% का रेट ऑफ जीएसटी चार्ज होता है। सो the uniform tax means the rate of taxes divided into five slab, but such kind of slab of rate will be applicable equally in all over the country. The number third, GST paid is not a cost. It is a very important part. When you purchase any kind of goods not for self consumption, suppose you purchase an AC for reselling to the wholesaler, resell to the retailer or customer. So if you paid any kind of GST on the purchase of AC from the manufacturer or wholesaler, it is not a cost, it is your assets, because such kind of input GST can be adjusted against output GST. When you are sell those items furtherly to the retailer and the customer, you will receive the GST and you have right to adjust the input GST against output GST. So GST paid is not a cost, it is your assets, because you have an option to avail the adjust the input GST against output GST. The next one is goods and service tax is a value added tax. It is a very important part of the feature of GST, because GST is a VAT, just like a VAT. जब हमारे देश में GST का नामो निशान नहीं था तो स्टेट लेवल पे टैक्सेस लगते थे गुड्स के सप्लाई के केस में वैल्यू एडेड टैक्सेस। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है, बिकॉज GST पेज इज अ सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ए परचेज गुड्स फॉर 1 lakh and sell the same to B for 1,50,000 and the GST rate is 12%. सो इस सिचुएशन को अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ए ने मैन्युफैक्चरर से 1 लाख रुपए का सामान ख़रीदा और उस पर 12% का GST पे किया। टोटल उसके पास से पैसा गया 12,000। सो इस ए ने इस पे GST पे किया तो ये इसका कैसा GST है? इनपुट GST है। जब फर्दरली ए ने ये गुड सेल किया बी को तो कितने में सेल किया? 1,50,000 रुपये का, और उस पर GST पे किया 18,000। टोटल कितना हुआ? 168। ये इसका कैसा GST है? आउटपुट GST है। सो यू नो वेरी वेल GST इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो अगर आपने कोई सामान 1 लाख में ख़रीदा है और उसको फर्दरली आप 1,50,000 में बेच रहे हो, यानी 50,000 अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके बेच रहे हो, और ऐसा भी होता भी है। जब आपने परचेस किया था तो 12,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दिया था। गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है, उसे पता है कि आप सेल और सर्विस, तो आपने गवर्नमेंट को कितना रुपए दिया? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये टैक्स दिया
और आपको टैक्स मिल कितना गया गवर्नमेंट के हिस्से का? 18,000। तो इसका मतलब 18,000 रुपये आपको मिला है और आपने गवर्नमेंट तक अभी तक कितना पहुंचाया है? 12,000 रुपये। तो अभी आपको गवर्नमेंट को और कितना जीएसटी देना है? 6,000 रुपये। सो दिस एग्जाम्पल इज बेसिकली प्रूव द जीएसटी सेम एज द वैल्यू एडेड टैक्स. How? GST paid by the A on purchase, that is 12,000, and GST collected by A from B on sale, that is 18,000. So GST now payable by A to government, that is 6,000. क्योंकि 12,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, 18,000 टोटल उसको मिला है, 6,000 रुपये वो और जमा करेगा. So 12,000 paid at the time of purchase is set off against 18,000 collected at the time of sale, and the balance 6,000 payable to the government. Further, suppose the above mentioned goods are again sold by B to C for 1,60,000. अब मान लीजिए यही फिर फर्दरली सेल कर दे. अब B क्या करे? C को सेल करे. तो B ने कितना GST पे किया था? 18,000 रुपये चाहिए. अब C से उसको कितना GST मिल जाएगा? कितने में सेल किया? 1,60,000 का 12%, डेट इज़ जो भी आएगा. शायद 28,000 आएगा. यस. सो 1,60,000 का 12% निकालते हैं. ओके. $19,200. ओके. सो बी ने जीएसटी पे किया 18,000 रुपये और उसे सी से जीएसटी कितना मिल गया? 19,200. सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,200 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. कौन पे करेगा? अब बी पे करेगा सी, क्योंकि ये प्रोसेस फर्दरली तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस प्रोडक्ट का फाइनली कंजप्शन ना हो जाए. सो दे आर बेसिकली 4 characteristics and features of the goods and service tax. The first one is goods and service tax is a comprehensive indirect tax. It is a uniform GST rates. GST paid is not a cost and GST is a value added tax. बिकॉज जैसे जैसे हम प्राइस इंक्रीज़ करते हैं जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज होता जाता है, और जिसको एक्स्ट्रा जीएसटी मिलता है पेड से, जो उसने प्रीवियसली पे किया है, जितना ज़्यादा उसे जीएसटी मिलता है उतना ज़्यादा पैसा उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जीएसटी, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ जीएसटी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएसटी, सो जीएसटी के कुछ एडवांटेज हैं, क्योंकि इसीलिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है हमारे देश में. सो सम ऑफ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ जीएसटी आर एज फॉलोज. द फर्स्ट वन, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स. द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स eliminated in tax GST regime. In the pre-GST regime there was a many indirect taxes levied by both and central and state. यानी अगर आप बात करो प्रीवियसली टैक्स स्ट्रक्चर की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हमारे देश में जो पहले टैक्स सिस्टम था उसमें कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. सो कभी कभी देखा जाता था कि एक बार किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस पे टैक्स लग जाता था, फिर दोबारा लगता था, फिर दोबारा लगता था. सो उस कारण उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी, क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चर ने मान लीजिए कोई टैक्स दिया, तो जब वो रिटेलर को सेल करेगा तो टैक्स ऐड करके बेचेगा, यानी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस टैक्स ऐड करके बेचेगा. फिर रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, रिटेलर हो सकता है भी कुछ टैक्स दे, तो कॉस्ट प्लस टैक्स, तो इस तरह से उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो कहीं ना कहीं बढ़ जा रही थी. सो विद द हेल्प ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, तो किसी एक प्रोडक्ट की या सर्विस पे एक ही बार टैक्स लगता है, तो देखा जाता है कि जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स है, वो काफ़ी कम आई.
Number second, ease of doing business. In the pre-GST period, there was a multiple types of indirect tax such as excise duty, sales tax, service tax, VAT, and as a result, a business was required to register itself separately under each under एक्ट. देखिए, जब भी पहले क्या होता था कि कई तरह के टैक्सेस थे, तो इससे कॉस्ट तो बढ़ती थी, साथ ही साथ बिज़नेस करने में भी दिक्कत आती थी, क्योंकि अगर हमें कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर उस टैक्स के अंदर अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था. जैसे अगर हम एक्साइज ड्यूटी के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था. सेल्स टैक्स के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना. सर्विस टैक्स के क्राइटेरिया में सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता. अगर तीनों में आ रहे थे, तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओ. और मान लीजिए अगर हम एक्साइज ड्यूटी में बिज़नेस कर रहे हैं, एक्साइज में बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं चलो प्रोडक्ट को सेल भी किया जाए, तब एक बार हम रुक जाते थे कि अरे छोड़ो, कौन अलग से काम करे, क्योंकि फिर उसके लिए टैक्स भरो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराओ. तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के मन में एक हेजिटेशन था कि उसका एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाए. सो वो कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करता था अपनी प्राइमरी एक्टिविटी के अलावा. लेकिन जीएसटी के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है बिजनेसमैन को कि वो एक ही जीएसटी नंबर से, एक ही रजिस्ट्रेशन से वो मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. वो चाहे तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो चाहे तो सेल कर सकते हैं, वो चाहे तो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस पे एक ही जीएसटी पे टैक्सेस पे कर सकते हैं. यानी उनको अलग अलग कंसल्टेंट रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि पता चला कि एक्साइज ड्यूटी के अलग से एडवाइज़र रखिए, सेल्स टैक्स के लिए अलग से एडवाइज़र रखिए, सर्विस टैक्स के लिए अलग से एडवाइज़र रखिए, अकाउंटेंट भी रखिए जिसको प्रॉपर सबके बारे में नॉलेज हो. तो ये भी मिलना मुश्किल है, अगर मिलता भी था तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है. तो कहीं ना कहीं जीएसटी आने से वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है और कई मल्टीपल टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं, जिससे कॉस्ट तो कम हुई है, एज़ वेल एज़ टैक्स बिज़नेस करना जो है वो आसान हो गया है, रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर पाना आसान हो गया है, और मल्टीपल एक्टिविटी में बिज़नेस करना भी आसान हो गया है. और इससे अकाउंटेंट का जो वर्क प्रेशर है वो भी काफ़ी रूप से कम हुआ है. Next one is developing common market, nation market. Tax GST is levied at the same rate in the similar goods and services across all state and union territory. For example, electronic goods sold across India are levied at the rate of 18%, and it has developed common national market. इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ऑफ हमारे देश में ऑल ओवर इंडिया अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स पे 28% का जीएसटी लगता है तो वो पूरे देश में लगता है. तो कहीं ना कहीं हमारे देश में कॉमन नेशन मार्केट को प्रूफ करता है. पहले डिफरेंट टैक्सेस के रेट जो थे स्टेट अथॉरिटी के पास होते थे, जैसे वैट लगाने का राइट जो है स्टेट के पास होते थे. जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपका, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल है इंटरटेनमेंट टैक्सेस. कोई भी स्टेट के पास ये राइट होता था कि वो उस मूवीज़ पे इंटरटेनमेंट टैक्स लेगा कि नहीं लेगा. अब जैसे कोई मूवी रिलीज़ हुई, अब मूवी जो है वो दिल्ली में जीएसटी फ्री हो गई, यूपी में जीएसटी फ्री हो गई, यानी उस पर कोई टैक्स इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा. तो अब आप उसका कंपेयर करेंगे विद द अदर्स स्टेट से, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो पब्लिक है उसे कम पैसे में मूवी देखने को मिल रहा है और वहाँ की स्टेट को ज़्यादा पैसे में मूवी देखने को मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं हम इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं. नेशन एक है, मार्केट एक है, बट मार्केट में रेट ऑफ टैक्सेशन के कारण, डिफरेंशिएशन के कारण कहीं ना कहीं भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करने को मिल रहा है. द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन टैक्स एविएशन. टैक्स जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैड रिड्यूस टैक्स एविएशन इन कंपाइलर्स टेस्ट. ये भी बहुत इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि जब एक ही टैक्स अथॉरिटी हुई है तो हम ईजिली टैक्स एविएशन को फाइंड आउट कर रहे हैं. ये टैक्स एविएशन क्या होता है? टैक्स एविएशन मतलब कर बचाना. कुछ लोग होते थे जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, कुछ लोग होते थे जो अपना प्रॉपरली असेसमेंट नहीं कराते थे, फाइल नहीं फिल करते थे. तो इस कारण से टैक्स गवर्नमेंट के पास प्रॉपरली पहुंचता नहीं था. अब मॉनिटर बहुत आसान हो गया है क्योंकि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो गया है. सो एवरी बिजनेसमैन मस्ट बी कनेक्टेड विद द जीएसटी एज वेल एज विद द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. द नंबर 5 इज गुड्स बिकमिंग चीपर. यस, in the pre-GST period there is a many indirect taxes and there are no set of tax paid against tax collected. In tax GST structure, tax paid is set off against GST collected. As such, it does not have cascading effect and goods and service shall become cheaper. जीएसटी के आने से हमारा जो गुड्स है वो कहीं ना कहीं सस्ता हो गया है, क्योंकि
हमने अभी बात किया कि हमारा जो टैक्स का क्रेडिट हमको मिलता है व्हेन वी पेड द जीएसटी, सो इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। अगर हम जीएसटी के इम्प्लीमेंट के बाद जब भी हम कोई जीएसटी पे करते हैं यानी इनपुट जीएसटी, और जब भी हम कोई जीएसटी रिसीव करते हैं यानी आउटपुट जीएसटी, तो जीएसटी पेड का हमें सेट ऑफ मिलता है अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जब भी हम कोई एक्साइज ड्यूटी पे करते थे तो उस एक्साइज ड्यूटी का हमें कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं मिलता। एक्साइज ड्यूटी मतलब ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो उसे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है ऑन देयर प्रोडक्शन, अब उसके प्रोडक्शन वैल्यू पे। तो लेकिन एक्साइज ड्यूटी में हमें एक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता था, बट अब जीएसटी आ गया है तो एक्साइज ड्यूटी वो जीएसटी सेम बात हो गई है, तो हमें जीएसटी पेड पे जीएसटी कलेक्टेड का एडजस्टमेंट मिलता है। जैसे हमने बात किया कि मैन्युफैक्चरर अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी पहले पे करता था, अब तो जीएसटी पे करता है। तो फर्दरली अगर उसे होलसेलर को सेल करता है तो उस पर जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं जमा करता, जो जीएसटी उसने ऑलरेडी पे किया है गवर्नमेंट को एज अ एक्साइज ड्यूटी, एज अ जीएसटी, उसका उसे क्रेडिट मिलता है। सो इसका कास्काडिंग इफेक्ट नहीं होता। ये कास्काडिंग इफेक्ट बहुत ही पॉपुलर इफेक्ट है और इस पे आप फ्यूचर में बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे, बीकॉम में जाएंगे, एमकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, तो कास्काडिंग इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन द टैक्सेशन। जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं तो कास्काडिंग इफेक्ट बताता है टैक्स ऑन टैक्स। जब हम टैक्स पे टैक्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू इंक्रीज़ करता है, कहीं ना कहीं टैक्सेशन पॉलिसी की कमी को बताता है। सो जीएसटी के आने से कास्काडिंग इफेक्ट काफ़ी कम हो गया है और हमारा गुड्स एंड सर्विस काफ़ी सस्ता हो गया। और यू नो वेरी वेल, जब गुड्स एंड सर्विस सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, तो उसकी डिमांड में इंक्रीज़ होती है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। So the next importance is attracting foreign investment. Foreign investment in India was hindered because of multiple indirect taxes. GST has removed this obstruction with the introduction of one single tax. As such, it will help to increase the foreign direct investment in India. Foreign investment को बढ़ावा देना हमारे देश ने काफ़ी दिन पहले से कर लिया। 1991 में LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। सो आज भी हमारे देश में कई एरियाज़ में 100% FDI अलाउड है, बट कई फॉरेन कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि उनको सेफ़ नहीं लगता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारे देश में कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सो वो यहाँ के टैक्स सिस्टम से उतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। सो जीएसटी के आने से हमारा जो FDI का रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में काफ़ी बड़े हैं, जिससे हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो हमारी GDP है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। So next, the last is most important advantage of the GST's tax system becomes more transparent, regular and predictable. अगर फ्रैंकली पूछिए मुझसे तो मुझे लगता है कि मैंने कई तरह के टैक्सेस को स्टडी किया है, और जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था, जब GST हमारे देश में लॉन्च हुआ था, तो मैंने GST से रिलेटेड काफ़ी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो आई पर्सनली फील डैट कि GST के लिए जो सॉफ्टवेयर, जो वेबसाइट और जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, एज़ कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम, इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। ये बहुत ही बड़ा इनोवेटिव आइडिया है हमारे देश के लिए, बट कहा जाता है कि जब भी कोई चेंजेस आता है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत आपको फ़ायदा नहीं देती, कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप डाइजेस्ट करते हैं, लेते हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। सो इसका कई विरोध भी हुआ है, कई लोगों ने अपोस्ट भी किया है, बट हम उस मसले में नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द GST। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मानिए कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो 100% इज़ अ ट्रू, बिकॉज GST ने कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को काफ़ी प्रॉफिटेबल किया है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम हुई है, बिज़नेस करना एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन बिकम्स मोर ईजी, जिसे हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। कई तरह के स्टार्टअप भी लॉन्च हुए हमारे इंडिया में। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, पूरे मार्केट में कॉमन नेशन क्रिएट हुआ है, कॉमन वैल्यू क्रिएट हुई है। टैक्स इवेशन में कमी आई, जो लोग टैक्स बचा लेते थे अब वो टैक्स को सेम रूप से सबको देना पड़ रहा है।
goods becoming cheaper, attracting foreign investment, as well as it is more transparent, regular and predictable because it is totally based on the online, it is totally based on the नेटवर्क्स, ऑनलाइन नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, इसके लिए कोई ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं होता है. सो आपको पता है इंसानों से गलती होती है बट मशीनों से गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द GST, दैट इज़ टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर GST. इन द लास्ट फ्यू वीडियोज़ हम लोगों ने GST से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री पॉइंट को कवर अप किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ GST and 3 kinds of GST applicable under GST, that is central GST, CGST, state GST, that is SGST, or union territory GST, UTGST, and integrated GST, that is IGST. सेंट्रल GST जो कि सेंट्रल लेवल पे वर्क करेगा, जो भी CGST या सेंट्रल GST से पैसा कलेक्ट होकर आता है वो उस प्रॉपर सेंट्रल का पार्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको पैसा मिलता है. रही बात स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो यू नो वेरी वेल हमारे देश में कई सारे स्टेट्स हैं और कई तरह की यूनियन टेरिटरीज़ हैं. सो अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होते हैं, इंट्रा स्टेट होते हैं, सॉरी विद इन स्टेट होते हैं और या विद इन यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, तो वहाँ पे SGST को भी उसका शेयर मिलता है और दैट इज़ नोन एज SGST एंड UTGST. अगर वो स्टेट में हो रहा है तो SGST चार्ज होता है, अगर यूनियन टेरिटरी में चार्ज होता है तो UTGST चार्ज होता है. एंड इंटीग्रेटेड GST जो चार्ज होता है इंटर स्टेट सेल्स पे, यानी जब 2 स्टेट आपस में सेल करते हैं तो उस पर इंटीग्रेटेड GST चार्ज होता है. ओके, तो दे आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ GST. थोड़ा सा हम इसको डिटेल कर देते हैं. रही बात स्टेट GST और यूनियन टेरिटरी GST की, तो व्हेन एनी ट्रांजैक्शन और सेल विद इन अ स्टेट, दैट इज़ इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट. जैसे अगर राजस्थान का डीलर ने राजस्थान के डीलर को कोई सामान बेचा, कोई गुड्स सोल्ड किया, तो उस पर जो GST चार्ज होगा वो उस GST का जो पैसा है वो स्टेट को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान एक स्टेट है. अगर वो कोई यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन करता है तो उसका पैसा यूनियन टेरिटरी को मिलता है. लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर राजस्थान का कोई सप्लायर ने राजस्थान कोई गुड्स सेल किया और उस पर 12% GST चार्ज हो रहा है, तो 6% जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट को उसका शेयर मिलेगा और 6% मिलेगा हमारे सेंट्रल को. ओके, तो 6% विल बी ट्रीटेड एज अ SGST एंड 6% विल बी ट्रीटेड एज अ CGST. यानी 50-50% का मार्जिन रखा गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है विद इन ए स्टेट तो उसका 50% उस पर्टिकुलर स्टेट को मिलता है, 50% जो है वो सेंट्रल को मिलता है. नाउ वी विल मूव टू द इंटीग्रेटेड GST. इट इज़ लेवाइड ऑन द इंटर स्टेट सेल. इंटर स्टेट सेल का मतलब 2 स्टेट के बीच में, जैसे यूपी और राजस्थान के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है और उस पर GST का कोई चार्ज होता है, सो इस सिचुएशन में पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. ये बात याद रखिएगा. अगर मान लीजिए राजस्थान ने गुड्स सेल किया MP को, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, तो राजस्थान और MP दोनों अलग अलग स्टेट है, दोनों विद इन स्टेट नहीं है, तो ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, तो इसका कोई भी GST मान लो 12% GST है तो पूरा पैसा पहले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी CGST का पार्ट होने का, जिसको हम IGST बोलेंगे, IGST का पार्ट होगा और जिससे मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इस IGST को सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड करेगी, वो बात का बात है. यानी सिंपली बात करें कि अगर सिंपल सी बात करें, 2 तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक विद इन स्टेट यानी GST 2 से चार्ज होता है, एक विद इन स्टेट और एक इंटर स्टेट यानी 2 स्टेट के बीच में. तो अगर विद इन स्टेट सेल होता है तो 50% जो है वो सेंट्रल को मिलता है और 50% स्टेट को मिलता है. और अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो पूरा का पूरा पैसा IGST माना जाता है, यानी कि पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है. ओके, और फर्दरली बाद में अगर क्वेश्चन में कोई गिवन इन्फॉर्मेशन होगी या इन्फॉर्मेशन कोई गिवन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें से कुछ पैसा दोनों स्टेट को मिलेगा, राजस्थान को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने कई टॉपिक को स्टडी किया
and such kind of topic is very important regarding the accounting treatment of GST, that is the feature of GST, advantage and objective of GST, as well as the types of GST. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट्स को स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot. If you have any kind of doubts or suggestion regarding this topic, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp groups.